There are other announcements like the national education policy that should really worry us, because, and it is a setback. It is actually a setback for progressive, secular, and scientific values, and it actually displays, it reveals the insensitivity of what the states have been saying. There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with uncaringly. Now there are many more issues, and I'm sure you are much more aware of them than I am. So I think I will stop here and hand the meeting over to Mamata ji. Sanjay, thank you so much for calling this meeting, especially at this crisis time, and when our students community, especially, they are facing a lot. Even they are totally in their uncertainty. They have their mental agony. They do not know. Government already announced that G and NEET exam will start from 1st to 6th and 13th. But how they will give the examination, I do not know, because more than 25.50 lakh students are involved. Even more than 4,500 to the centers are already there. Rail is not working properly. Aviation also, there are some problems. Transportation is also not effectively working because of this lockdown system and all this. Now, under this lockdown protocol, when like COVID, a pandemic is going on, then first in the month of April, UGC has sent a letter to the state government that they will defer this exam or they will take some other options. But again, they send another letter to change that decision, which will harm the students, especially the graduation, post-graduation. And now the G and the NEET, our students and youth, they are very much talented. They are really very brave. They are very bright. And I do not know how they will sit for exam. Yes, I appreciate that government can say that Supreme Court has given the verdict and that's why government is doing all these things. I have appealed Prime Minister, I have requested, I have sent so many letters, but I can show you that yes, I have sent this letter to Prime Minister because of this NEET, G and this exam, other exam, and I requested Prime Minister that if the government can review government can request the Supreme Court when students community are in a serious situation. Even some people are facing the depression also. It is a mental agony. Then Government of India can appeal Supreme Court, Honorable Court to review the appeal so that students community, they feel they are not being harassed or they are not being deprived or they are not going for the mental torture or depression, what is going on right now, whatever we are getting the information from the grassroots. And now that is the option is there. Even with the state government, especially Punjab, Maharashtra, this Jharkhand, Puducherry, then we have the Rajasthan, and also we have the other state government also. Whoever will support it, it depends on them. But whoever present is here today, we can also, if the law permits, we can discuss this matter with our senior advocates. There are so many important advocates they are always helping us, maybe Abhishek Singhvi or Kapil, or there are so many important advocates in this countries are there. So who are who are experts in this field, we may discuss the matter with them. And Bengal is there. If Punjab Chief Minister can take initiative, Punjab, Maharashtra, Jharkhand, Puducherry, Rajasthan and others, then we can also jointly appeal
it may be that the Supreme Court may say that we have already given the direction. But sometimes we have seen there are some precedent also that if the position, if the problem is there, if the situation is some sensitive, then of course they always give consideration to the people's voice, students' voice, because students and youth, they are the future, they are the asset of this country. So we also may appeal the Supreme Court. If central government feel not to appeal, then we as a state government, because we are also elected government, this will be my request to all the state government. Let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the time being unless the situation allows students to sit for exam. And more than 25.50 lakhs, it is not a mere, it is not a joke. Even G, there is a system for online exam, but medical no. From where they will be coming, where they will be going, how they will be going. Even mentally also they are not prepared for this. Now all the educational institutions are closed. So at this situation, that will be my first appeal to all of you. I am thankful to Saniaji for convening this meeting today, because this is a very serious issue. I thought what we discussed about COVID, this is also important issue. Education issue is a very important issue, and we stand by our students. We stand to our students and youth, and we are stand by our students. Whatever they require the help, we are willing to do it. और मैडम यहाँ एक और इशू है अभी एग्जाम का, जो नीट का है और जेई का एग्जाम का विषय है, जो इन लोगों ने इसको दे रखा है, नेशनल एग्जाम क्या है, एनटीए को जो इन लोगों ने सपुर्द किया है एग्जाम देने के लिए, ये बात है, सही है, एग्जाम होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूं, लेकिन मुझे लगता है इट इज टू हरी। अभी बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, अभी मुझे लगता है इसके लिए तो बहुत कुछ, हमारे राज्य में तो स्थिति ये है कि हमारे राज्य में यूपी से भी बच्चे यहाँ एग्जाम देने आते हैं, बिहार से भी आते हैं, आस पड़ोस के राज्य के भी लोग यहाँ पर सेंटर डालते हैं। और मुझे जहां तक जो जानकारी मिली है, हमारे राज्य में तो मात्र 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को ही इन लोगों ने सेंटर बनाया है। मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति होगी, डेफिनेटली सारे बसेस खोलने पड़ेंगे, सारे होटल्स खोलने पड़ेंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। और जो अभी कोरोना तो मेरे दरवाजे तक आ गया है, और उसके बाद जो बच्चे आएंगे, बच्चे अकेले नहीं आते इस एग्जाम में, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मूव करते हैं, और खासकर जो गर्ल्स होती हैं और पेरेंट्स के साथ आती हैं, मतलब को एक नहीं डबल ट्रिपल करके वो लोग आएंगे, मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा, जिससे संक्रमण उस समय और ज्यादा होने की संभावनाएं भी होंगी। मुझे लगता है इसमें डिले करने के लिए और थोड़ी सरकार को कुछ फैसिलिटेट करे केंद्र सरकार, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इस एग्जाम को करा पाए। नहीं तो फिर जो जिस तरीके से इन लोगों ने हर चीज से पल्ला झाड़ा है, इस केस में भी ये पल्ला झाड़ेंगे और सारे राज्य सरकारों के मत्थे डालेंगे कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार के पास ना वेंटिलेटर अभी हमारे पास उपलब्ध है, ना बेड उतना सफिशिएंट लोगों के लिए उपलब्ध है, ना हमारे पास वैसे रेस्क्यू सिस्टम हमारे पास इमीडिएट हम जनरेट कर पाए। तो है, समस्या तो है मैम, लेकिन इसके लिए हम लोगों को लगता है कि जॉइंटली कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। थोड़ा विपक्ष की आवाज थोड़ी बहुत कमजोर हमको महसूस हो रही है, और ये लोग तो जिस तरीके से आए दिन कभी सरकार को परेशान करो, कभी उस सरकार को परेशान करो, कभी इस विधायक को परेशान करो, कभी उस मिनिस्टर को परेशान करो, इसी में फंसा करके हम लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं और हम लोग को इनके मेन मुद्दे से हम भटक जाते हैं। आज का जो विषय है, मैं नहीं मानता कि जितने सारे हमारे साथी मुख्यमंत्री जी हैं, किसी का भी मत इससे अलग होगा। सब सारे एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं और लड़ाई तो चल रही है। हेमंत जी, पहले जैसे आपने जो बात कही, हमें तय करना चाहिए, अभी एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला ये तय करो, नहीं तो ये हमारी चर्चा होती रहेगी, मिलते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, जो भी कुछ, जहाँ आपके यहाँ आएंगे तो आप जो खिलाएंगे हम खाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे तो सही बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मतलब नहीं है। लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा। और हमारा तो यही है, सत्यमेव जयते। ऐसे कभी ये नहीं कि आज तक कभी सत्तामेव जयते नहीं है, सत्यमेव जयते है।
तो लड़ना है तो लड़ना है। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की ताकत सबसे बड़ी होती है, उसका आवाज सबसे ऊंचा होता है, और वो अगर कोई दबाने की कोशिश करे तो उसकी आवाज उठानी चाहिए, और वो हमारा कर्तव्य बनता है। एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने तो शायद मई एंड या जून में हमने डिसीजन लिया, जो फाइनल ईयर है, जितने सेमिस्टर हुए हैं उसको एग्रीगेट कर कर मार्क्स दिए जाए। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। लेकिन जून महीने की अगर हम बात कर रहे थे, मैं कर रहा हूं, तो जून की स्थिति और आज की स्थिति, आज तो ये खतरा बड़ा है। और हमारे शहर में ठीक है, हमारे मुंबई में तो हमने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कंट्रोल में आ भी गया है, लेकिन और कुछ जगह वो फैल रहा है, कोरोना थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। तो जून से आज की बात करें तो आज ज्यादा फैला हुआ है। तो जून में अगर हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे, तो आज ये जब संकट बढ़ गया तो हम कैसे परीक्षा ले सकते हैं, एग्जाम कैसे ले सकते हैं। और इसीलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने सेमिस्टर हुए उसको एग्रीगेट कर कर मार्क्स दिए जाए। बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम उनको पास कर देंगे, और बाद में जब भी संभव हो हम एग्जाम जरूर लेंगे। और अगर किसी बच्चे की ऐसी धारणा होगी कि अरे नहीं, एग्जाम होता तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, तो वो उसकी मर्जी, वो उस एग्जाम वो दे सकता है। फिर एग्रीगेट किए हुए मार्क्स और एग्जाम में मिले हुए मार्क्स चुनना उसका काम है। तो मैंने पहले कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन आज के दिन ये स्थिति नहीं है। और जैसे कहीं बाहर के देशों की ओर हम देखें, मैंने बीच में खबर पड़ी थी, यूएस में उन्होंने स्कूल खोल दी और ऑलमोस्ट 97,000 बच्चे, 1 लाख के आसपास वो संक्रमित हो गए। क्या करेंगे ऐसे अगर स्थिति हमारे यहाँ आ गई तो? हमने उद्योग तो मई महीने में ही शुरू कर दिए। आज भी हमारे यहाँ जो इलाका है, जो सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, मुंबई से लेकर पुणे तक, वहां हमने लॉकडाउन है, जरूर है, लेकिन आहिस्ते 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 हम इसको खोलते जा रहे हैं। मिशन बिगिन अगेन, मिशन बिगिन अगेन। तो आहिस्ते आहिस्ते खोलने के वक्त शायद कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि हम काफी स्लो जा रहे हैं। स्लो ठीक है, वो टॉर्टोइज और वो खरगोश, उसकी तो कहानी सबको पता है। जल्दबाजी कर कर कुछ फायदा नहीं होता है। आहिस्ते कदम जाए लेकिन ठीक से डालें, तो जो कदम हम आगे बढ़ाएंगे उसको वापस लेने की आपत्ति हम पर नहीं आनी चाहिए। ये सोच समझकर हम आगे जा रहे हैं। तो सारी चीजें हम खोलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम खोलते जा रहे हैं। स्कूल, मैंने स्कूल के बारे में भी यही कहा कि स्कूल शुरू कब होंगे? स्कूल शुरू नहीं करेंगे, लेकिन एजुकेशन शुरू करेंगे, वो चाहे ऑनलाइन हो या कुछ भी हो।